Okay. Now that we look into the British film industry, you know, more or less the Indian-based British films are based around this single subject about immigrant families coming from India, Pakistan, or Bangladesh, and their children being born and brought up here. They're a bit confused. They've got cultural issues. I mean, that's what the film shows. But you came out with a different subject. By the looks of, from what we see in the trailer, it has a completely different look. Do you think it was a risk for you, or you just took a chance, or what was it? How do you try and tell people that yes, you could relate with this kind of story as well? Sure. I think those people took a risk when they made those films in the first place, because it's 2012 for crying out loud, and we're still making films about getting your daughter married, having arranged marriages. I don't think Asia, I mean, unless you live in a small gritty town where, you got Hezbollah or someone like, ruling in Bradford. I mean, people don't live like this anymore, everyone's independent. Our parents have become more lenient and more liberal slowly because that generation has passed away. So the new generation, so the people in their 40s, now they've got kids in like 20s. So they quite understand because they went through the process. So with our film, we made an outright commercial film. It's got action, comedy, suspense, intrigue, romance, the whole intriguing factor in our film. And as I was saying in a previous interview, I said, if Karan Johar and Guy Ritchie met and they got drunk and said, you know what, we're going to make a perfect film. We want the kind of lock, stock, snatch style, and then we want the whole Bollywood element into it, and they would say, well, let's just call it Seven Welcome to London, and that's the case. So no, I don't know. I mean, the previous senior counterparts making films in the UK just haven't been able to lock the audience, which is core Bollywood-loving audience, to make films because they insult their intelligence, or they make very kind of indie, boring kind of films. We don't believe in boring. We are totally outright commercial with everything that we do, and that's what's happened. And even in our campaign, the kind of marketing strategy we had has actually worked in our favor, because right now you walk on the road and even guys are singing Tera Saath Ho to me, so something must be going out somewhere. Yeah. Apart from that, when you talk about cultural issues, it's what you said is absolutely right, because we're past that kind of problems and issues now. Lots of people actually think that if you're born and raised in England, being a Pakistani or Indian, you can't speak Urdu and stuff. But I think that's absolutely wrong, because I believe you guys speak fantastic Urdu. We've seen the film. तो हम अभी थोड़ा सा उर्दू में बात करेंगे, ताकि जो है व्यूवर्स जो उनको पता चले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब उर्दू में बात कर सकते हैं. I was dubbed actually. मजाक कर रही हूँ. नहीं मैंने एक्चुअली सुना था इनको अभी थोड़ी देर पहले बाहर उर्दू में बात करते हुए, तो मुझे पता इनको उर्दू आती. प्लस विस्पर कर रही थी, आपको कैसे आवाज आई? नहीं, जब उर्दू के अल्फाज होते हैं तो सुनाई फौरन दे देता है, तो इसलिए पता चल जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने ट्रेलर देखा, उसमें आपने थोड़ा सा बोला क्या सीरियसली पे बोलते नहीं मैं जो वगैरह. तो अभी जैसे आपने बताया कि नहीं, अगर गाय रिची और क्या कहते हैं करण जौहर मिलकर एक फिल्म बनाए, और वो फिल्म जो होगी वो एग्जैक्टली सेवन वेलकम टू लंदन जैसे, क्योंकि उसमें स्नैच का एलिमेंट होगा, उसमें एक इंडियन मेलोड्रामा सॉर्ट वो भी चीज होगी कि गाना वगैरह, तो वो तो बेसिकली दिख रहा है पोस्टर से, क्योंकि सारे बदमाश टाइप पीछे खड़े हैं, हाई फाई, और पीछे एक सलवार कमीज में खड़ी हैं, तो वो भी लग रहा है. तो फिल्म के अंदर काफी एलिमेंट्स है. इसके अलावा तो फिल्म के गाने हैं, तेरा साथ हो और मेरा मन, जो बेसिकली हमने भी और बाकी व्यूवर्स ने भी जो है सुन के रट लिए हैं, मतलब याद कर लिए हैं. तो ये गाने किस तरह आइडिया है कि यार फलक को लें या सुहेल हैदर को लें, क्योंकि आजकल हम लोग हमेशा इंडिया में देखते हैं कि यार काफी पाकिस्तानी सिंगर आके वहां कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा क्या आइडिया था कि यार मैं इसको लूं या कोई और बड़े सिंगर को ना लूं? नहीं, मैंने पिछले 5 साल से मैं B4U पे पहले VJ था, तो मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. तो अगर दुनिया का किसी को भी अपना म्यूज़िक वीडियो चलाना है तो मेरे शो पे आते थे, तो सब लोग मेरे साथ यानी कांटेक्ट में थे कि हाँ यार ये नया गाना है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो. तो मेरे पास डेटाबेस में 200-300 गाने थे. और फिर जब मैंने फिल्म की बात शुरू की तो मैंने सबको एक मैसेज किया. मैंने बोला यार मैं मूवी बनाने वाला हूँ, तो जिसके पास नया मटेरियल या पुराना मटेरियल सब भेज दो मुझे. लेकिन एक बात थी कि जो लिरिक्स होते हैं ना गाने के, वो आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक होने चाहिए. अगर वो नहीं होंगे ना तो सब बुरा लगेगा कि यार ये अचानक रोना धोना और अभी ये डांसिंग शुरू कर दिए, कुछ मतलब नहीं बनता. तो क्या किया हम लोगों ने कि जब गाने आए मेरे पास, तो मेरे पास तकरीबन 140-150 गाने नए आए. तो मैंने वहाँ बैठा, मुझे 2 दिन लगे वो पूरे गाने सुनने में, लेकिन मैं गाने 10 सेकंड पे रिजेक्ट कर देता था. तो जब वो 100 पे गए, 140 से 100, फिर 80 पे गए, फिर 70, फिर 50, फिर 40, फिर 20, फिर 10 और फिर 7 पे हम लोग अटक गए. तो बेसिकली
7 वेलकम टू लंदन में 7 गाने और फलक जब फलक के गाने मैंने देखे वो एक क्या उसकी आवाज़ जो है ना मेरे से बहुत मैच करती है एक्चुअली। और जब आप मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा। और सुहेल हैदर भी ना तो वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स थे तो मैंने उनसे बात की एंड वो ऑल फोर्थ कमिंग। उन्होंने बोला कि हाँ यार हमें ये करना है। और ज़बरदस्त ये कि एक चीज़ में हमने उन सबको रिवाइव किया है। लोग भूल गए थे फलक कौन है, सुहेल हैदर को कोई पहचानता नहीं था, जुज को कोई जानता नहीं था, यादा एक्सेस को कोई जानता नहीं था। हमने उन लोगों को रिवाइव किया और वो लोग इतने शुक्रगुजार हैं कि उन्हें पता है कि जब आप एक मूवी के साथ आते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली ना वैल्यू बढ़ जाती है। एंड दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी हैड उन सब लोगों से। और आई मीन मेरा मन तो उसने रिलीज भी नहीं था किया क्योंकि वो सिर्फ उसने इस मूवी के लिए गाया था एक स्पेशल गाना बना के। और मेरा मन आई मीन उसके जो लिरिक्स हैं आई मीन लगता है कि अभी ना करण जौहर की मूवी है ऐसे लगता है यार। सो काफी वो फील देती है एक सीन की क्योंकि जब हम ट्रेलर्स में देखते हैं तो काफी हाँ। लेकिन मजे की बात यह है कि जो गाने आप म्यूजिक वीडियोस देख रहे हैं मूवी में इन सब की फुटेज डिफरेंट है। अच्छा ट्रेलर से अलग है, म्यूजिक वीडियो से अलग है। तो बेसिकली जो आप म्यूजिक वीडियोस देख रहे हैं और जब द वे दे हैव बीन रिप्रेजेंटेड इन द फिल्म वो फिर ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है कि जब वो देखेंगे ये गाना दोबारा फिल्म में तो उनको नई फुटेज नजर आ रही है, ये वाली फुटेज नहीं दिखाई देगी। एग्जैक्टली उसके अलावा ये बताएं कि आपका कोई फेवरेट गाना है पूरी फिल्म के अंदर जितने गाने हैं जिसमें आपका कोई फेवरेट गाना है? मुझे सब पसंद है मगर मेरा फेवरेट है मेरा मन। और आपका? मेरा एक्चुअली बेरुखी। आप बेरुखी देखिए जो कि इस वीकेंड को हम लोग यूट्यूब पे डालें और टीवीज पे आज से आ रहा है। बेरुखी जो पहला गाना था जो मैंने चुना था ये एक रॉकस्टार स्टाइल का गाना है और बहुत ज़्यादा गहराई है उसमें उनके शब्दों में और उनके लफ्ज़ों में। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह कि एक थोड़ा हटके है। तो ये हो सकता है हमारा आखिरी म्यूज़िक वीडियो हो जो हम रिलीज़ करें। फिर मूवी रिलीज़ होने के बाद 2 और हैं लेकिन राइट नाउ आई मीन मोमेंटम बिल्ड हुआ है। और मज़े की बात है कि ऑडियंस ने जो जनता है बाहर जो पूरी कौम है उन्होंने गानों को बहुत ज़्यादा पसंद किया। लाइक एक यानी कि बन गया वहाँ पे रूट कि यार इसके गाने क्या कमाल के, एक से बढ़कर एक आता है और वो उससे बढ़कर बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो गाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आम नहीं हो सकता। आजकल लोग चलो म्यूजिक वीडियो बना लेते हो, इट्स नॉट। ये जो मूवी मेकिंग बिजनेस है ये बहुत बड़ी गेम है, ये एक मोनोपोली है। इसको समझना चाहिए कि कैसे आप क्या तरीके से काम करते हैं और बाकी सिर्फ ऊपर वाले पे छोड़ दिया। अब देखें बट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। आई मीन द काइंड ऑफ अस्टाउंडिंग रिस्पॉन्ड लाइक मैं बता रहा था कि इल्फुड गे एंड गॉट मॉब्ड इन द सिनेमा एंड वाज लाइक रात का टाइम इट वाज लाइक क्रेजी बट नो पीपल आर आई मीन लोग सुबह उठते हैं तो वो ट्वीट करते हैं सब लोग आज मैं ये गाना अभी मैंने लगा के सुना, मैं काम पे जाने वाली हूँ तो मैंने ये गाना पहले सुना है। और अगर आप आजकल टीवी कोई भी चैनल पे स्विच ऑन करें तो आपको एक चैनल पे हमारा एक गाना लग रहा होगा, दूसरे पे जाएंगे दूसरा लग रहा है, तीसरे पे तीसरा, ये सब साइमल्टेनियसली लग रहा है क्योंकि कंपेन इतनी बड़ी है। सो या वही बात है, गाने बहुत ही ज्यादा पसंद करे जा रहे हैं लोग। अपने ब्लैकबेरी पे जो है स्टेटस अपलोड कर रहे हैं कि यार फलक का गाना उन्होंने सुना है यार, वो 7 वेलकम टू लंदन में ये वो मेरे को भी कर रहा है। मैं कहा यार मुझे तो पता है मैं जा रहा हूँ वगैरह वगैरह। उसके अलावा हमने फिल्म का थोड़े दिन पहले ट्रेलर देखा, मैंने अपने पेज पे भी डाल रखा है। तो जब फिल्म का ट्रेलर हमने देखा उसमें हमने देखा कि यार आप पहले जो है काफी मतलब ये आप किस तरह बताएंगे ये फिल्म ज्यादा एक्शन है या ज्यादा इस फिल्म के अंदर रोमांस है? क्योंकि हमने देखा एक वक्त में आपके हाथ वाथ बंधे हुए कहीं जेल वेल में हो, फिर आप अभी आज माशाल्लाह बाहर भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब कैसे, पहले तो ये बताएं कि आप बाहर कैसे आए उस जगह से? वो जो मेरा मन है वो प्रमोशनल वीडियो है, उसमें हाफ फुटेज हमने एक्स्ट्रा शूट की है सिर्फ उस म्यूजिक वीडियो के लिए। और सिर्फ जो सीन्स हैं मेरे और सिमरन के साथ वो हमारे सीन्स जो हैं वो मूवी से हैं। So that's a promotional video about killing your inner demons. Okay, तो वो काफ़ी डेप्थ में है। लेकिन आपने ये जो सवाल किया उसका मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा आंसर है, वो है 9 मार्च 2012। आपको सब कुछ पता चल जाएगा जो आपको जानना चाहिए। चले इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म जो है सक्सेस करे और आप लोग को वो सक्सेस मिले जो आप लोग ने हार्ड वर्क किया है। इसके अलावा कोई आप लोग के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम क्योंकि अभी लोग जो है ऑब्वियसली आप लोग को वैसे ही जानते हैं और काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है आपकी, तो स्पेशली बहुत ज्यादा है क्योंकि आप वीजे रहे। तो ऑब्वियसली लोग जानना चाहेंगे कि आपके क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे कि इस फिल्म के बाद व्हाट इज असद शान एंड व्हाट इज सबीका इमाम प्लानिंग टू डू नेक्स्ट? Doing 9 Welcome to Heathrow. আমার
signed for that, or you're rejecting me? ऐसा ना करें, क्योंकि पहली दफा जब 7 वेलकम टू लंदन की बात निकली थी तो लड़कों ने समझा कि शायद ये फ्री स्टूडेंट वीजा मिल रहा है और पता नहीं क्या इसकी कोई प्रमोशन चल रही है। तो मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक तो अच्छा है ना, सबको वीजा मिलेगा, लेकिन हमने ना ये जो एक इमिग्रेंट होता है उसको हमने कूलनेस दिखाया है, लाइक यू नो, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि यहाँ पे जो बोर्न ब्रेड यूके के लोग हैं वो हमेशा यार फ्लैशी फॉब ये वो वगैरह सब कहते हैं। द थिंग इज इन आवर कैरेक्टर, हमारा वी आर नॉट प्रीची, वी नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, बट हमारे कैरेक्टर्स जो है ना वो बिल्कुल जैसे रियल लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं वैसे हैं, and they're true to the core, like you know, the normal people that take the tube every day, they walk on Green Street while they go home. So yeah, I think that's what our film is, that's what our strength is. तो आपकी ये रियल लाइफ जिंदगी से कितना कैरेक्टर मेल खाता है कि आपको कि हाँ यार कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर जो हमने प्ले किया है इस फिल्म के अंदर वो हमारी रियल लाइफ पर्सनालिटी से काफी हद तक मैच करता है, या ये कुछ चीजें मैच करती हैं, ऐसा कुछ है, सिग्निफिकेंस है? सिमरन की जो क्वालिटीज हैं वो आई थिंक हर लड़की में होती हैं। शी इज क्यूट, स्वीट, अडोरेबल। आई थिंक मोस्ट लड़कियां ऐसी होती हैं, मगर ऑब्वियसली मेरे पास अदर क्वालिटीज भी हैं, तो सिर्फ उसको रखने के लिए आई हैव टू टेक अवे ऑल द अदर वंस। स्वीट के अलावा आप चिल्लाती हैं या कुछ करती हैं? गुस्सा करती हूँ, प्लेटें तोड़ती हूँ। आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया था सेट्स पे? नहीं, नो। ये सब ग्रीक रेस्टोरेंट्स में प्लेटें वैसे नहीं तोड़ती। ये ग्रीक रेस्टोरेंट वाला क्या किस्सा है, जरा हमें भी बताएं। ये ग्रीक का एक ट्रेडिशन है। अच्छा, मेरे को लगा कोई रेस्टोरेंट में प्लेटें तोड़ दी, मैंने कहा क्या हो गया ये? ग्रीक लोगों का ट्रेडिशन है, वो प्लेटें तोड़ते हैं। अच्छा, खाने के बाद प्लेटें वगैरह तोड़ देते हैं। चले, बहुत अच्छा है। एनीवेज, कुछ लास्ट मैसेज आप फैंस को देना चाहेंगे कि फिल्म देखने आए, और आपके बारे में कुछ भी मैसेज आप देना चाहेंगे? तो हम लोगों ने बहुत मेहनत से ये मूवी बनाई है और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई है। तो जब आप सिनेमा जाएंगे ना तो आप बाहर निकलेंगे, बोलेंगे यार बहुत ज़बरदस्त थी। तो कोई पूछेगा यार अच्छा कहानी बता, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं बताऊंगी यार, नहीं बताऊंगा, तो खुद ही जाके देख ले। ये मेरा वादा है कि लोग आपको यही कहेंगे, बिकॉज वो आपका मज़ा ख़राब नहीं करेंगे। और हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई है, और माशाल्लाह लाइक ना हमारे गाने सुपर हिट हैं, हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, और एक थोड़ा हट के कमर्शियल मूवी है। तो यू गाइज विल लव इट, सो आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट टाइम। इफ यू वांट टू बी एंटरटेन्ड, वॉच दिस फिल्म। देखा नाज़रीन, जैसा कि असद, शान और सबीका मैम ने मैसेज दिया, मैं भी यही कहूंगा कि फिल्म के ट्रेलर्स देखने के बाद मेरे को भी काफी फिल्म एक्साइटिंग लगी। इट्स अबाउट टू रिलीज ऑन 9th of March in cinemas near you. I'll see you later then. Bye. Hi guys, this is Asad And Sabeeka. from the film 7. Welcome to London. There you go, guys. Now we have a special message. You are watching us on London Entertainment Society, LES, and for all the latest videos and news. Yeah, news. Facebook. You should just Facebook this, London Entertainment Society, and check it out and join up.